Yes, I have started. Okay, so let us start now. Till now, we have completed. There was two sessions in which we have completed VNet and subnet, IP reviewing, network routing, and DNS. DNS basics we are going to cover in the fourth, the very last session, I would say. In the next session we have completed, we have seen how can we secure our Azure network resources, how does network security group work. We have done both demo and practical. We have seen demo and theoretical part we have seen. Service endpoint we are going to cover in our last session. Today we are going to discuss about VNet pairing and certain more part. Because before we are going to start, let me just start with this, the presentation that we have. So yes, now let me start. So hi everyone, my name is Syed Tazib Hussain. Welcome to our Hussainia IT Pro. I am a co-founder of this community, Microsoft certified trainer and enterprise cloud architect. So like I would say in this overall, we are going to discuss about few things, understanding the role of virtual network. This all we have done. We will discuss a very at a very high level. We will understand the role of network, a virtual network in Azure. So okay, here we have a representative visual diagram that depicts an entire web application workload running in an Azure virtual network. So if you look at this slide, you have at the left corner internet, load balancer, as well as DevOps. But if you observe, you have two load balancer. One is this boundary is of Azure virtual network. You see two load balancers. One is at outside this and one is at over here. Okay, so how do you call it? You take one as a uh, external load balancer and one as an internal load balancer. So any virtual machine that you put in a virtual network and any related service endpoint, maybe if you have an Azure SQL that we have over here, database that you want to link to VNet, you can link Azure App Services to VNet. You can link a storage, you can, and it can provide an abstract layer and isolation layer for those workload. So हर किस्म के आप वर्कलोड्स और रिसोर्सेस आप यहाँ डाल सकते हो. There is certainly many ways to obtain a secure connection to your virtual network. अब मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क को एक सिक्योर तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ. मैंने भाई इंटरनेट पे लोड बैलेंसर दे दिया, लोड बैलेंसर से यहाँ पर ये जा रहा है. मैंने अपना एक बेस्टियन रखा, अपना ये डेवॉस वाला बंदा एजोर पोर्टल पे आ रहा है, एजोर पोर्टल से बेस्टियन पे जा रहा है, एंड देन ही इज कनेक्टिंग. सो like there are certain ways to obtain a secure connection to your virtual network, to try or like hit directly VM to avoid like directly hitting the VM. It can be via a PIP, which is public IP, or as far as a communication between virtual network. Now there is now that is where I would say your network capability will increase. How you are going to communicate. अब एक और नेटवर्क है मेरा, मुझे मालूम है कि वर्चुअल नेटवर्क क्या करता है. वर्चुअल नेटवर्क को अगर एक वर्चुअल नेटवर्क है, मेरा एक सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरे दो वर्चुअल नेटवर्क है, तो एक वर्चुअल नेटवर्क क्या दूसरे वर्चुअल नेटवर्क से बाय डिफॉल्ट बात करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा. ओके, सो I would say like it's natural that because we are using a Azure backbone network, if it's saying your subscription and even in the same region you have a VNet of dev environment and one of your prod environment, what do you expect? I would say like all of us would see that VM would be able to transparently resolve other host name and connect, and you will find actually that is not the case by design. Because by design network is again an isolation boundary. So although they are sharing a same a backbone network, but network by design, VNet by design is a isolation boundary. You need to take step to link virtual network together, and again there's a different way to do that. Okay, probably by the end of our
our target or before completing this network work, network sessions and all that, you will come to know, you will like understand how a virtual network allows you, okay, how to control the traffic into a VNet, between VNet, and of course within the VNet at several different layers. Okay, so speaking of layers, I would say the actual network resource, the actual network resource is the outer boundary. ओके, सो अब ये हमारा VNet के बारे में हो गया है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए थे. नाउ इफ यू सी how we are connecting options to connect virtual network, I have a gateway, I go to management subnet, and from there it is VNet to VNet VPN. Okay, so if you see this, okay, I don't want to like spend too much time here because we are going to deal with VNet pairing and VNet to VNet VPN in second module or in this module itself. So here what we are actually looking at is more of hybrid scenario. Okay, what is hybrid? Hybrid is something where you have an on-premise network, maybe an active directory domain services domain with a VPN gateway. Okay, and we have a site-to-site VPN created with Azure. We have a connection at the top layer. In Azure, it would be virtual network, and then we have a dedicated subnet in VNet where we have Azure VPN. If you see, we have Azure VPN gateway resources, and that create actually ये क्या करता है? It creates a IPsec tunnel create करता है, and always on connection. And at this point, you can actually extend your on-premise network into virtual network. And you know, you can do this thing like domain join. You can manage your Azure virtual machines on-premise vCenter. आप अपने virtual machine के जो on-premise से you can manage your cloud machines. Okay, using System Center, you can work in reverse and manage your on-premise using your Azure management solution or Azure log analytics. तो मुझे अगर ऑन प्रीमाइज से मेरे क्लाउड को अगर कुछ मैनेज करना है तो आई विल गो विद सिस्टम सेंटर. इफ आई वांट टू डू अ रिवर्स, okay, I have to use my Azure management solution या Azure log analytics. The possibilities are, and there are endless possibilities, I would say. You can manage in different way, but that VPN gateway on Azure is the one way to not only connect to virtual machine together, but also you can see in the slide to create a hybrid connection between your on-premise environment and Azure virtual network. कैसे बन रहा है मेरा एक्सप्रेस राउट की कहानी, ये कहानी वो कहानी हम लोग बाद में देखेंगे. हमारा ये कैसे बना, VPN गेटवे से बना. ठीक है, थोड़ा से वी अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे VNet pairing. I hope this is clear. I am considering if there is anything you guys speak in between. I am not going to call out anyone's name. आप लोग मुझे पिंग कर देना या जो भी रहेगा, but I am not going to call out because हमारे पास टाइम थोड़ा कम है. Okay, so what is VNet pairing? I would say VNet pairing is an excellent option when you have multiple VNet and you need them to logically connect such that traffic can flow entirely on Azure network backbone. Okay, अब अगर मैं VNet वाले उस पे आता हूँ, मेरा why is it not going? Okay, options to connect virtual network pairing. Okay, so now I would say बहुत सारे scenarios है कि let's say within a same subscription you are doing VNet pairing. Why you are doing? Let's say there is a merger of a department within a different subscription you are doing VNet. There is a merger of a project, or there are two companies, two entities, or two organizations working together to achieve a common target, or on a single project they are working. So there are n number of scenarios that you can think about. So in some in some cases a business might have a VM in single VNet, and अभी उन लोगों they now they realize that they actually need one or more of those VM in another VNet. अब मैंने एकदम बेसिक सिनेरियो दे दिया, एक VM है एक VNet में. now they want, okay, I want one or more VM in other VNet. Well, I would say
one workload as one opposed to take a backup of resource VM and restoring into new VNet. We can do it. Is to create a pairing relation between two वर्चुअल नेटवर्क. अभी मैंने वर्चुअल नेटवर्क के मैंने मैं दूसरा एक बना दूंगा वहां पे VNet. और अगर मुझे इसको करना है तो मैं इसका क्या करूंगा, इसकी डिस्क को एक्सपोर्ट करूंगा और वहां पर स्नैपशॉट बना के डिस्क बना के वहां पे इससे VM बना दूंगा. ठीक है, हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में. Remember that VNet are isolation boundaries. See, I am repeatedly telling this. I have repeatedly included so that they are going to be like that. There is not going to be any connectivity at all between them by default. Again, we are going to do we are going to do the pairing at a much deeper level in this session or might be in the next session. So all I'm going to say now is that this is possible and you don't have to worry about region now, because पहले क्या होता था कि अरे VNet pairing के लिए region भी same होना चाहिए, अब वो नहीं है. There was a time I would say basically where VNet to VNet pairing करना है कि भाई same region होना चाहिए. Okay, now because I would say thanks to the global VNet pairing we can go across Azure region. Okay, one final point I would say, if you notice on this slide, we are using express route circuit as opposed to site VPN to extend. We are not using site to site VPN. We are using Azure circuit, express route circuit as opposed to a site to site VPN to extend our on-premise network into an Azure virtual network. So what is express route? Express route is basically a wide area networking technology. It has superb speed, it has link speed up to 10 Gbps. ठीक है, बट 10 Gbps कोई नहीं रखता है, 2 रखते हैं, 5 रखते हैं. हाँ 10 भी मैंने देखा हूँ, बट यस बहुत ही रेयर रहता है वो. And this is very useful, for business that want to secure connection, that want to bypass the internet entirely. I have used in n number of scenario this thing. अब मैं एक काम करता हूँ. Let me show you some practical. I believe we are 9:30. So half an hour हम लोग प्रैक्टिकल को देते हैं. ठीक है, पहला तो मुझे ये देखना है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. ठीक है, ऑलवेज अंडरस्टैंड how many virtual network I have. Let me see. VNet, कितने VNet है मेरे पास. कल मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल किया था, वो भी मैं अगर टाइम रहेगा तो बताऊंगा. Azure Session 1 एक और VNet हम लोग बनाते हैं और इस VNet का नाम देंगे, we will call it as, okay, not I will not do it right now, but let us see. ये वाला VNet डिलीट हो गया है क्या? It is there. Yes, it is there, but why it is not showing to me? Subscriptions all. Okay, ठीक है. अभी हम लोग एक काम करते हैं, we will create a virtual machine. There is some issue, I believe. Yes, let me go to virtual machine again. I hope you guys are with me. Okay, let me first explore the VNet. VNet के options को थोड़ा सा explore करते हैं. This is my VNet. Okay, where is pairing option? I need to check that. चलो कहीं पे pairing दिख रहा है? Yes, pairing दिख रहा है मुझे. Pairing में मुझे क्या करना है? मुझे add करना है. क्या करूंगा? Pairing name एक दे दूंगा. Allow traffic, allow forward to virtual network. फिर मैंने क्या किया? बहुत easy. Virtual network gateway none, remote virtual network pairing name ये कर दिया. यहाँ पे मेरा वर्चुअल नेटवर्क दूसरा कौन सा है? मेरा ये वर्चुअल नेटवर्क दिख रहा है, तो मैं यहाँ से पेयरिंग कर दूंगा. अभी मैं ऊपर की डिटेल दे दूंगा तो ये पेयरिंग हो जाएगा. आई एम नॉट डूइंग पेयरिंग एज ऑफ नाउ. आई वांट टू शो अ डिफरेंट प्रैक्टिकल राइट नाउ टुडे, बिकॉज अभी हम लोगों ने लोड बैलेंसर की एक बात किए थे यहाँ पे. इफ यू गाइज रिमेम्बर ये लोड बैलेंसर, तो ये मुझे आप लोग को एक
इसकी हल्की सी एक झांकी देना है, what does it look like? Okay, so let me do one thing. Sorry, sir. Sorry to interrupt, but might be Faiz by mistake started his session, but now he stopped. वो सेशन के बीच में सर ऐसे ही दिख रहा था कि शेयर हुआ है स्क्रीन, ऐसा दिख रहा था। नहीं तो मैं ही कर रहा हूँ ना शेयर तो नहीं सर, स्क्रीन। आप कर रहे थे, शायद वहां से हो गया था, इसीलिए वो मुझे दिख रहा था फैज हैज शेयर्ड हिज स्क्रीन, ऐसा दिख रहा था। हाँ तो मेरा ही शायद आ रहा होगा, दूसरी कुछ स्क्रीन थी क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो रहा था। ठीक है, इट्स ओके सर, नाउ इट्स ओके। अच्छा, मेरी स्क्रीन ही दिख रही है, कुछ और दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा था, पहले नहीं दिख रहा था। अच्छा, ओके ओके, चलो ये सोर्स पे जाते हैं हम लोग। अभी एक वो बना रहे हैं VM-SRC, नाम वाम याद रखना भाई लोग, आप लोग के कंफ्यूज ना हो। ओके, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है, मजा आएगी आप लोगों को। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक वीनेट, दोनों वीनेट सॉरी 2 वीएम पे लोड बैलेंसर लगाऊं। ठीक है, मेरे साथ रहो तो अच्छा लगेगा, आप लोग को मजा आएगी। ओके, ये हो गई हमारी बात। अब मैं इसको दे देता हूँ Azure 01 सिलेक्ट पोर्ट वगैरह मैंने कर दिया, ये अलाउ है, डिस्क है, अपने को जल्दी जल्दी करना है। सो आई एम अवॉइडिंग एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग अहेड। ठीक है, मैंने ये क्रिएट कर दिया। मीनवाइल ये क्रिएट होता है, लेट मी ओपन अ डुप्लीकेट, और मैं वहां पे एक और रिसोर्स बनाता हूँ। आई थिंक ये हो गया वर्चुअल। ठीक है, एक और वीएम मैंने बना दिया, यहाँ पे बना रहा हूँ सोर्स वाले वीनेट में, इसका नाम दूंगा VM-SRC-02। ठीक है, इसका ये ले लिए हैं 001। चलो ठीक है, इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ डायरेक्ट। हमारी रिसोर्स क्रिएट हो गई है क्या? इट्स डिप्लॉइंग। कल मैंने बहुत कुछ आप लोगों के लिए सोचा था, जिसको हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। इट इज गेटिंग क्रिएटेड, क्रिएट नाउ, मीनवाइल इट इज गेटिंग क्रिएटेड। अपने दोनों वीएम चल रहे हैं, अपना फास्ट फास्ट हाथ काम करने का, एकदम सट सूट करके ना छोड़ दो, मस्त फ्री हो जाओ फिर। उसके बाद है ना फटाफट हाथ चला के अब अपने को लोड बैलेंसर बनाना है। लोड बैलेंसर में मैं जा रहा हूँ, इसको लोड बैलेंसर यहाँ पे बनाऊंगा, क्रिएट अ लोड बैलेंसर वीनेट। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ LB-SRC। ठीक है, पब्लिक स्टैंडर्ड है, पब्लिक है, रीजनल है। ओके, फ्रंट एंड आईपी, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रंट एंड आईपी, मेरे पास कुछ आईपी है क्या? चलो मैं पहले आईपी का नाम दूंगा LB आईपी। ठीक है, चूज पब्लिक आईपी। भाई हमारे पास तो कोई पब्लिक आईपी है नहीं। ये वाली जो आप दिख रहे हो ना, ये 1 की, ये एसोसिएट नहीं होगी क्योंकि SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट इसकी और वीएम की जो हम लोग ने सिलेक्ट किए हैं वो सेम नहीं रहती। तो हम लोग क्रिएट एक नया करेंगे, इसका नाम दे देंगे लोड बैलेंसर पब्लिक आईपी, लोड बैलेंसर SRC पब्लिक आईपी। कभी भी नेमिंग कन्वेंशन में ध्यान दो, अगर एक हैबिट बना लोगे ना। ये हमारा नया हो गया, हमने बना दिए। अब इसको बोलेंगे बैक एंड पूल, हम लोग बाद में देंगे। इनबाउंड रूल्स बाद में देंगे। आउटबाउंड रूल्स कुछ नहीं करेंगे, टैग कुछ नहीं। नाउ डायरेक्टली गो एंड क्रिएट इट। हमने क्या बनाया, हमारा कंटेनर बन गया है, कंटेनर। अभी कुछ हुआ, कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया। चलो एक आया, दूसरा हमारा वीएम कहाँ गया भाई?
SRC ये दूसरा दिख रहा क्यों नहीं, कहाँ चले गया ये? दूसरा आना तो चाहिए भाई, उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है दूसरे का। दूसरा नहीं दिख रहा है। लोड बैलेंसर तो हमारा आ गया, वर्चुअल मशीन क्यों नहीं दिख रहा यार? अरे चलो मीनवाइल एक काम करते हैं हम लोग, जब से वो आता है हम लोग इसी पे काम करते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो बहुत मजा आएगी इस पे। इस पे मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सेस करता हूँ अभी। इसको मैंने पब्लिक आईपी से एक्सेस कर लिया। और वो वाला हुआ ही नहीं, क्या हुआ आई डोंट नो यार, वो दिख ही नहीं रहा है, उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। सो वियर्ड, क्योंकि उसको हम लोगों ने वहां पे पूरा ये करके छोड़े थे। ठीक, ठीक है, अभी एक काम करते हैं, मैं इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं करता हूँ अपना, पहले मैं एक और वीएम बना ही लेता हूँ। पता नहीं क्या मिस्टेक हुई या क्या हुआ, आई डोंट नो। अच्छा अभी हम लोग वापिस से नाम देंगे तो पता चल जाएगा। SRC FN02। हाँ मतलब क्रिएट ही नहीं हुआ है भाई वो, ये तो नाम नहीं लेता ना। क्रिएट कर देते इसको। ओके ओके, कुछ तो उसको इंफॉर्मेशन मिसिंग आई है। मैंने थोड़ा सा खाई कर लिया यार। लेट्स सी। हम्म। क्यों ऐसा हो रहा है, ये हो जाने दो इसको, हम लोग रुकते हैं इसके लिए। जब से हम लोग यहाँ आते हैं हमारा ये जो है ये बन गया है। दूसरे का क्या हाल है? ठीक है, ये हमारा हो रहा है अभी भी डिप्लॉयमेंट। ये हो जाए तो हम लोग अपना इसका भी एक्सेस लेंगे। फिर अब क्या करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों को लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट थोड़ा मजेदार लगेगा कि अब आया, कुछ तो हुआ था झोल, आई डोंट नो क्या था, क्या बात थी। इसको हो जाने दो रिफ्रेश। बहुत टाइम लग रहा है एक्चुअली आज इसमें। अच्छा मीनवाइल अभी मैं आपको बताऊं, मैं ना इसको टाइम को यूटिलाइज करते हुए, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है चलो इसको होने दो। यहाँ जाते हैं हम लोग लोड बैलेंसर पे। अब देखो अगर आप मैंने क्या किया, मैंने इसको पब्लिक आईपी से एक्सेस किया हूँ ये वाले वीएम को। दूसरा वीएम बनेगा, दूसरे वाले को भी मैं पब्लिक आईपी से एक्सेस करूंगा। अब मैं एक कॉन्सेप्ट होता है नेटिंग, ये नेटवर्किंग का एक कॉन्सेप्ट है नेटिंग। नेटिंग क्या बोलता है कि भाई एक ही आईपी दो, मैं उसको ना मल्टीपल वर्कलोड से कर दूंगा मैप। अब आईपी के आगे कुछ एक उसका रूम नंबर, समझे, बिल्डिंग एक है सबकी, एक बिल्डिंग का नाम है, अंदर रूम नंबर है।
ठीक है, तो पोर्ट के आगे हम लोग एक पोर्ट देते हैं, अपना आईपी के आगे एक पोर्ट देते हैं स्पेसिफिक। बाय डिफॉल्ट तो 3389 पे ही कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग एक लगाएंगे कॉलन करके, उसका लगाएंगे तो वो स्पेसिफिक आईपी से ही कनेक्ट होगा। आईपी हमारी एक ही है, लेकिन हमारा यूज कैसा हो रहा है, देखो अभी ये वाला भी आपको कनेक्ट करके बताता हूँ मैं। ये हमारा हो गया दूसरा भी कनेक्ट। ये दो आईपी मेरे पास आ गए, ये दो अलग अलग हैं। ठीक है, एक फोल्डर मैं यहाँ बना दूं, एक फोल्डर वहां बना दूं, ताकि आइडेंटिफाई करो हूँ। कहाँ गया ये, आजा भाई। सर्वर ए, और इसका दे देते हैं हम लोग सर्वर बी। ठीक है, ये मैंने पब्लिक आईपी से एक्सेस किया, ये दोनों पे ये चीजें मैंने बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे जाना है लोड बैलेंसर पे, मैं जाता हूँ लोड बैलेंसर पे। देखो लोड बैलेंसर अपने को भी अटैच करने नहीं देगा वीएम, वो बोलेगा देखो अभी क्या बोलता है। बैकएंड में मैं जाता हूँ, ऐड वर्चुअल नेटवर्क, ये नेम दे देंगे हम लोग वीएम एलबी एलबी एसआरसी बीकेपी 1। ओके, ये हो गया अपना। अब आते हैं नीचे वर्चुअल मशीन, ये बोल रहा है भाई वर्चुअल मशीन ऐड करूं। अब ये देखो क्या बोल रहा है, एक चीज मैंने आपको बताया था, अभी अपने को सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं देगा। वो क्या बोल रहा है, नो वर्चुअल मशीन फाउंड इन नॉर्थ यूरोप दैट मैचेस द अबव क्राइटेरिया। ये क्या बोल रहा है, पर हमारी वर्चुअल मशीन तो भाई मेरे वर्चुअल मशीन जो हम, क्या बच रहा है यहाँ से वहां, एक मिनट एक मिनट। हमारी वर्चुअल मशीन जो है, दोनों वर्चुअल मशीन तो हमारी यहाँ पे यूरोप में ही होस्टेड है। ये देखो दोनों यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में। तो फिर ये कुछ भी क्या बोल रहा है कि भाई नॉर्थ यूरोप में नहीं है। उसके आगे देखो, द ओनली अटैच मशीन वर्चुअल मशीन इन नॉर्थ यूरोप दैट हैव अ स्टैंडर्ड एसकेयू पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर्ड और नो पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर्ड। हमारी स्टैंडर्ड एसकेयू पब्लिक आईपी है, उसकी क्या है हमको नहीं पता, हमारी नहीं है एसकेयू पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर्ड। हम स्टैंडर्ड वाली नहीं होगी, हम ये पब्लिक आईपी निकाल ही देते हैं। देखते फिर उसके बाद दिखता है क्या। अब ये जो मैं इधर जाऊंगा, इधर जाने के बाद मैं इधर ये वाले आईपी पे आता हूँ। मैं इधर से बोलता हूँ कि भाई यहाँ से डिसएसोसिएट कर दो, डिसएसोसिएट। अब मेरे पास यहाँ से मेरा ये वाला भी कनेक्शन चढ़ जाएगा, उड़ जाएगा दोनों कनेक्शन। ओके, फिर मैं आता हूँ पीछे, फिर मैं जाता हूँ ये वाले उस पे, एंड लेट मी रिमूव द पब्लिक आईपी फ्रॉम हियर आल्सो। How am I going to do? I will just go in over here in public IP and I say disassociate. Okay, I say disassociate. Now if I go back and let me see, session 1 का गया, let me see session दूसरे का जाने वाला है, जाएगा अभी बस। I mean चले ही गया होगा ये तो। ये मेरा दोनों का ही चालू है, एक का हो गया, एक की सेटिंग चालू है। अब मैं आता हूँ अगर बैक एंड पे अपने, Animus International School, Korea and Animus World School Parashad offer that assurance to over 4,000 students with modern infrastructure. अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे वापस से अब देखना पड़ेगा कि भाई ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन तो हमारा दोनों, एक की सेटिंग बाकी है, हो गई, दोनों की सेटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड में जा रहा हूँ मैं, और सबसे पहला काम ये करता हूँ। ठीक है ठीक है, इसको पहले रिफ्रेश मार दूं मैं।
ओके, हमारा पब्लिक आईपी भी गया। ओके, एंड यहाँ से कनेक्शन गया एक का, दूसरे का कनेक्शन क्यों नहीं गया? हाँ गया, दूसरे का भी कनेक्शन। पब्लिक आईपी हमारा निकल चुका है। अब हम लोग इसको रिफ्रेश मारेंगे, अब हमारा वो दिखना ही चाहिए। ओके, ये आ रहा क्यों नहीं है ये वर्चुअल मशीन? एक मिनट, इसके पब्लिक आईपी है क्या? पब्लिक आईपी नॉर्थ यूरोप, नॉर्थ यूरोप SRT, ठीक है। इसका क्या है हमारा? नॉर्थ यूरोप SRC, ठीक है। फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा? ये है, ये वाली आईपी जो हम लोग ने दिए थे। अच्छा, लोड बैलेंसिंग रूल्स पे तो बाद में आएंगे, पहले मुझे ऐड तो करने दे दे, ये ऐड ही नहीं करने दे रहा है। ओके, अब इसका मैं फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग। लोड बैलेंसर SRC, ओके अब देगा, अब देगा, यस। ऐड, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे थे ना, हम लोग इसको अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। ये जो है हमारा लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर से ये आईपी पे, ये वीएम पे आऊंगा या ये वीएम पे आऊंगा, ठीक है। अब ये हमारा ऐड हो रहा है, जब से इसको ऐड होने दो। जब से ये ऐड होता है यार, मुझे पैरेलल चीजें करने मजा आती है एक्चुअली। थोड़ा अगर सिंकअप में रहो ना, तो आप भी इंजॉय करोगे इस चीज को। अब मैं जाता हूँ पब्लिक आईपी पे, जब से मेरा ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जब तक हो रहा है यार, क्या बैठे रहूं यार मैं। तो अभी अगर मैं इस पे आता हूँ, इसके साथ कुछ खेलते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरा पब्लिक आईपी है, हो गया क्या? नहीं, चलो ठीक है। इसके साथ क्या खेलेंगे पता है? ये जो मेरा पब्लिक आईपी है कहाँ पे? अपना वीनेट SRC में है, ठीक है। देखते हैं कि इसको हम लोग मूव कर सकते हैं क्या। इसको मैं मूव करता हूँ, मूव टू अनदर रिसोर्स ग्रुप, मूव टू अनदर सब्सक्रिप्शन, मूव टू अनदर रीजन। भाई मेरे यहाँ पे एक, अगर आप देखोगे तो एक आप सोचोगे यार, ये रिसोर्स ग्रुप बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन बोल रहा है, रीजन बोल रहा है। एक और जब मैंने देखा था, ये अगर आपके दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा तो आना चाहिए कि भाई यहाँ पे वीनेट क्यों नहीं है। यहाँ पे वीनेट भी होना चाहिए ना। सब्सक्रिप्शन दे दिया है, रीजन दे दिया है, मतलब क्या, मैं नॉर्थ यूरोप की जगह कोई और रीजन पे चले जाऊं। ये सब्सक्रिप्शन क्या, मतलब मेरा जो सब्सक्रिप्शन है कोई एक और सब्सक्रिप्शन पे चले जाएगा। रिसोर्स ग्रुप क्या, मतलब ये वाला जो रिसोर्स ग्रुप है SRC, इसकी जगह मैं कोई और रिसोर्स ग्रुप कर दूंगा। मगर वीनेट क्यों नहीं दिया है? ये ख्याल आना चाहिए। जब से ये ख्याल आया आपका, हम लोग यहाँ आके देखते हैं, ठीक है। वो ख्याल करते रहो, उस पे आएंगे हम लोग, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 2 वीएम ऐड हो चुका है। अब हम लोग ने बोले भाई ये 2 वीएम मेरा ऐड हो चुका है, लोड बैलेंसर के पास है ये 2 वीएम, रूल्स वूल्स कुछ भी नहीं है हमारे पास। मगर मैं अभी एक काम करता हूँ, अगर मैं ये अभी आईपी उठाऊं और इस पे मैं RDP लूं, इसके उस पर कहाँ गया ये? कॉपी होती होता है या नहीं? ओके, क्या बोल रहा है ये, वो देखते हैं हम लोग। इसको याद रखना, हम लोग यहाँ पर आएंगे। ये क्वेश्चन पे याद रखो कि भाई यहाँ पे वीनेट का ऑप्शन क्यों नहीं दिया, वो भी हमको सोचना पड़ेगा। ये क्या हुआ, हमारा कनेक्ट नहीं हुआ भाई लोग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा क्लोज। अरे ये क्या क्लोज हो गया? हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ यार, मेरा आईपी है, मैंने वीएम भी ऐड कर दिया हूँ बैकएंड में, अब चल रहा क्यों नहीं है, हो रहा क्यों नहीं है? कुछ तो होना चाहिए ना।
इसको पता नहीं चलेगा कि अभी आपने खाली उसको आईपी दिए हो, कुछ बताया नहीं हो कि क्या काम करना है। ठीक है, तो उसको आप बताओगे कैसा, इनबाउंड नेट रूल। देखो एक लोड बैलेंसिंग रूल है भाई लोग, एक लोड बैलेंसिंग रूल है। लोड बैलेंसिंग रूल इज डिफरेंट, उसकी अलग कहानी है, उसकी अलग वो है हिसाब किताब। हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग नेटिंग। नेटिंग मतलब क्या होता है, नेटिंग मतलब वो बोलता है कि भाई मैं एक ही उस पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग हो गया आपका, ओके। अब एक बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल मंजर अपार्टमेंट। अब ये मंजर अपार्टमेंट में 10 लोग रहते हैं, 10 माले की बिल्डिंग है, तो मंजर अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 10 वैसा देगा ना। तो नाम सब लोग ने एक ही यूज की। यहाँ पे नेटिंग में क्या होता है, आपका जो पब्लिक आईपी रहती है वो एक ही रहती है, और उसके आगे पोर्ट वोट लगा के हम लोग एक्सेस करते हैं, जिसको बोलते हैं जुगाड़। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, इसको बोलेंगे LB SRC RDP। क्या कर रहे हैं हम लोग, RDP एक्सेस कर रहे हैं। हमारे टारगेट वर्चुअल मशीन ये है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये है, फ्रंट एंड आईपी एड्रेस हमारा ये है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ सर्विस टैग हमारा RDP है, बैक एंड पोर्ट मेरा है 55002। ये किसी का नंबर नहीं है, ये उसकी पहचान है कि भाई तुम ये मंजर अपार्टमेंट में आ जाओ, 55th फ्लोर रूम नंबर 2। समझ रहे, ऐसा कुछ ले लो एग्जांपल कि भाई ये यहाँ पे आओ, ये हमारा मेन बिल्डिंग है, ठीक है, ये रास्ते से आना और यहाँ ये वाले रूम नंबर में आना डायरेक्ट, ठीक है। अब आपने बोल दिए ओके, आप करोगे इसको ऐड 5502 5502। मीनवाइल ये ऐड होता है, हम लोग फिर यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ का क्वेश्चन ये क्या है कि भाई यहाँ पे वीनेट क्यों नहीं है, इसको सोचो वीनेट क्यों नहीं है। मैंने भी सोचा, फिर मेरे को याद आया, अरे यार भाई वीनेट मेरा रिसोर्स ग्रुप में रहता है, रिसोर्स ग्रुप में के अंदर ही वीनेट रहता है ना, वीनेट के अंदर रिसोर्स ग्रुप नहीं रहता है। अभी अगर मैं कोई भी वीनेट उसमें जाऊं रिसोर्स ग्रुप में, मीनवाइल ये भी हमको चेक करते रहना है। भाई मैं 2 जगह देखो चल रहा हूँ, 2 जगह, ठीक है, तो मेरे साथ सिंकअप में रहोगे तो मजा आएगी। ये देखो, ये क्या मेरा रिसोर्स ग्रुप है ना मेरे भाई रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही तो है ये अपना वीनेट। ये देखो वीनेट कहाँ पे आ रहा है आपका, वीनेट यहाँ आया ना। वीनेट के अंदर रिसोर्स ग्रुप नहीं है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर है वीनेट, ठीक है। अच्छा, एक एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर 10 वीनेट हो सकते हैं, 10 क्या 50 हो सकते हैं, ठीक है। एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं वीनेट। अब फिर मैं अपने हिसाब से वो करूंगा क्या है। अच्छा, वीनेट टू वीनेट कैसा करते हैं, एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स में, वो भी एक ट्रिक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ये चीज जम गई। अब चलो देखते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। चलो 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 चलो, हो जा कनेक्ट, हो जा कनेक्ट। नहीं कनेक्ट होगा भाई, ये नहीं कनेक्ट होगा, ये नहीं कनेक्ट होगा। क्यों कनेक्ट होगा, आप उसको आधा एड्रेस दे रहे हो, उसको बताओ। अब बोलो कि भाई आ जाओ ये यहाँ पे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब क्या है, अब कुछ अलग एरर आया है अपने पास, वो नहीं आया है। रुको देखते हैं अब क्या है हमारा, इसकी तकलीफ क्या है इसको। यहाँ गए इस रूल में, और आरडीपी ये है। हम लोग ने कौन सा आईपी लिए है, पहले मैं वो चेक कर लूँ। ओके, मैं यही आईपी दे रहा हूँ। आरडीपी हमारा फ्रंट में है, ये है, ठीक है। इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, 2002 करते, देखते क्या होता है। 5002 550002,
ये हमारा अप्लाई हो रहा है क्या? डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। ये 26 2067 नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, इसको हमको देखना पड़ेगा। जैसे नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। ओके ठीक है, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, सर्विस टैक्स को फिर से RDP दे देता हूँ 3309, छोटा दे देते हैं, देखते एक बार ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। थ्री थ्री जीरो नाइन मैं दोनों साथ में चला रहा हूँ, हो सकता है हो जाए। होने दो इसको पहला। ये होना ही चाहिए, इसमें कुछ ऐसा जरा भी वो है ही नहीं, इससे बेफिक्र रहो आप। यहाँ पे आता हूँ मैं, अगर फ्रंट एंड मेरा ये है, बैक एंड में मेरा ये चल रहा है, सर ठीक है, मैं एक काम और करता हूँ, मैं दूसरा नेट भी लगा लेता हूँ, हालांकि हमारा पहला नेट ही नहीं चल रहा है, लेकिन मैं SRC RDP 01, अब वर्चुअल मशीन 2 हमारे पास हो गई, ये वाला अपना IP हो गया, ये है 3310 3311 3307 दे देता हूँ, ठीक है। RDP फ्रंट एंड पोर्ट, hmm, 3311 0 कर देते हैं, 3389 इससे बेफिक्र रहो कि नहीं होगा, ये हो जाएगा अपना, क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों के लिए इसको ये और 2-3 प्रैक्टिकल्स मैंने और किया था वेरीफाई करने के लिए अपना बराबर है कि नहीं। थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस अपने को करनी पड़ेगी, बट ये हो जाएगा। मीनवाइल हम लोग वापस से लोड बैलेंसर में आते हैं, दूसरे रूल पे भी हम लोग काम करके रख देते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। अब एक बार अभी इसको जरा देखूं मैं, यस हो गया अपना ये वाला, ठीक है। मैं गड़बड़ कर रहा था, मैं ये वाला जो है ना पोर्ट वो इधर दे रहा था, तो अभी इसको भी हम लोग वो कर लेते हैं। मैं गलती कर रहा था, वो ये था हमारा 3389 और ऊपर मैं दे दूंगा 3309। अब अपना ये एक्सेस हो जाएगा। जो मेरे 2 VM थे, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एक ही पब्लिक IP यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं एक्सेस कर रहा हूँ 2 अलग-अलग VM। Okay, so now this is my VM2
यू सी दिस, यहाँ फोल्डर दिख रहा है, ये मेरा VM2 है, ठीक है। नाउ लेट अस सी, let us access our another VM, जो कि मेरा है पोर्ट नंबर वाला, कौन सा था मेरा, 110333309। ये मेरा 1 एक्सेस हो गया। आईपी मेरी कितनी है, पब्लिक आईपी एक है, एक पब्लिक, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पब्लिक आईपी का पैसा भर रहा हूँ, और मैं यूज कितने कर रहा हूँ, 2 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया इसको, अब ठीक है आएगा, ये देखो मेरा बी आ गया, ये क्यों नहीं हुआ अभी, दोनों में साथ में यूज कर सकता हूँ, साथ में। ये मेरा एक हो गया VM A, सर्वर B। ये क्या फायदा हुआ, दैट मीन्स अगर आप नॉर्मल, फॉर एग्जांपल ऐसा सिनेरियो है, देखो 2-4 चीजों में ये चीज यूज हो रही है। पहला, मुझे सिक्योर करना है भाई मेरा एनवायरनमेंट, मुझे नहीं बताना है कि मेरे इंटरनल आईपी का VM के क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक मैंने आईपी दिया हूँ, आप उससे कनेक्ट करो, और सिक्योर पोर्ट दिया हूँ, उससे बंदा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये, फॉर एग्जांपल एक अलग चीज है, हम लोग समझते हैं कि अगर मुझे पब्लिक आईपी यूज ही करना है, तो मैं हर VM के लिए पब्लिक आईपी अलग अलग क्यों लूं, मैं एक वीनेट नेटिंग इस पे कर दूंगा, नेटिंग करा बना दूंगा मैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये नेटिंग काम करता है। कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है, आई थिंक ये बहुत ही क्लियर हुआ है एक्चुअली, ठीक है। जिसमें हमारा लोड बैलेंसर, ये वाला जो आर्किटेक्ट है ना, ये वाला आर्किटेक्ट, कि कोई बंदा अगर इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर आया, ये देखो मैंने क्या किया, DMZ जोन बना दिया। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, बंदे को एक और वो लगा दूंगा लोड बैलेंसर। अब ये वाला जो लोड बैलेंसर रहेगा ना, उसकी पब्लिक आईपी नहीं होगी मेरे भाई, उसका डायरेक्ट वो एक्सेस करेगा इंटरनल इंटरनल इंटरनल। इसको बोलते हैं एन टियर एप्लीकेशन, ठीक है। एन टियर आर्किटेक्चर, सॉरी एप्लीकेशन बोल रहा था। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, अब जैसे अगर यहाँ पे क्रिएट करोगे एक और वर्चुअल, एक और लोड बैलेंसर, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है इंटरनल, खत्म कहानी इसकी, इंटरनल। अब अगर मुझे यहाँ पे मैं एक इंटरनल लोड बैलेंसर लगा रहा हूँ, और मेरे इंटरनल ये जो है एज पर दिस इंटरनल VM में कनेक्ट कर रहा हूँ, हो गई बात अपनी। यहाँ पे भी ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। NVA क्या होता है, हमारा नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस, ये मैं कभी आप लोग को बताऊंगा। वो पालो अल्टो, फायरवॉल, ये सब जो रहता है ना, वो हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो यही था हमारा लोड बैलेंसर नेटिंग के बारे में। आज मैं एक्चुअली सोच रहा था वीनेट का, हमारा वीनेट हो नहीं पाया, लेकिन लोड बैलेंसर का जो हमारा कहाँ गया रोड मैप, इसमें मैं एक टॉपिक कवर करने आ रहा था, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। वीनेट पेयरिंग का, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही इजी वीनेट पेयरिंग ऑप्शन है। मैं कुछ चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करो और उसको देखो। वीनेट पेयरिंग में अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, बहुत ही जल्दी बताता हूँ आप लोगों को। वीनेट पेयरिंग में आ गया, और मैंने एक पेयर कनेक्ट किया। वीनेट पेयरिंग मतलब क्या होता है, पेयर हो गया, इन लोग का रिलेशन हो गया, एक वीनेट का दूसरे वीनेट से रिलेशन हो गया, मतलब अब ये दोनों का भाईचारा, आपस में एक दूसरे के घर पे आना जाना इन लोगों का चालू है। अभी एक बंदा है, ठीक है, ये एक है, ठीक है। ये आपने नाम ले लो, बंदे का नाम A है, ये बंदे का नाम B है, ठीक है। ये दोनों अगर दोस्त बनेंगे, ठीक है, तभी तो ये इसकी रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाएगा। तभी तो अगर कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल इसको कहीं जाना है, तो गाड़ी यूज कर रहा है, जो कर रहा है, तभी तो ये भी कर पाएगा ना, ठीक है। अब एक और चीज इसमें रहता है, एक बहुत मजेदार चीज मैं बता दूं आप लोग को, जो अपने इसमें है, कि भाई A अगर B का दोस्त है और B अगर A का दोस्त है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि ए सी का दोस्त रहेगा, अगर बी सी का दोस्त है तो मतलब इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग दोस्ती होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बता दूं जो हमारे इधर कवर है, लेकिन मैं उसको आज कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा, मुझे ओके करना नहीं है पूरा। मैंने कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो कहाँ गया था, ये पूरा मैंने आप लोगों के लिए कल बनाया हूँ। ट्रांजिटिव वीनेट पेयरिंग आपको दिखाना है मुझे यार। ट्रांजिटिव वीनेट पेयरिंग नहीं होती है, जैसे अभी ये फॉर एग्जांपल कहाँ गया, हाँ ये देखो, नहीं ये वाला नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग ये सब करेंगे, हाँ ये सब करेंगे हम लोग। अच्छा ये देखो, अब ये इसकी वीनेट पेयरिंग इसके साथ है, इसकी हो गई, ए की हब के साथ हो गई, ये हमारा हब एंड स्पोक का आर्किटेक्चर है। ये ए की वीनेट पेयरिंग इसके साथ है, बी की इसके साथ है। इसका मतलब ये देखो दोनों इसके कॉमन दोस्त है ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी आपस में दोस्त है, ठीक है। ऐसा देखो यहाँ पर लिखा हूँ, वीनेट पेयरिंग कैन ओवरकम मिसप्लेस वीएम, सेव मनी विथ सर्विस शेयरिंग, फोर्स टनलिंग हो जाती है इसमें, लेकिन हमारी ट्रांसिटिव वीनेट पेयरिंग नहीं होती है। ट्रांसिटिव गेटवे है, ट्रांसिटिव वीनेट पेयरिंग नहीं होती कि ए और बी में आपस में दोस्ती हो जाए, क्योंकि दोनों के कॉमन दोस्त है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। लास्ट चीज, हाँ तो ये हमारा आप यहाँ पे वीनेट पेयर करके भी आप कर सकते हो। ये मैं अलग से वीनेट पेयरिंग लूंगा, आज मेरा जहन चले गया था कि लोड बैलेंसिंग बता दे, बिकॉज अक्सर ये जो आप देख रहे हो ना, ये अक्सर और बेशतर ये ज्यादा हमको ये डायग्राम दिखता ही है लोड बैलेंसर का, और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, पूछते हैं कि यार ये वाला बाहर क्यों है, ये बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, बाकी सब ये अंदर अंदर है ना। तो ये हमारी वीनेट की है, ये इसका मतलब ये नहीं कि एज्योर के ही बाहर है, भाई ये एज्योर का ही है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि ये ना ये पब्लिक है, पब्लिक एक्सेसिबल है, ठीक है इसके लिए। ओके अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो हमारे वीनेट का मैंने आपको जो बता दिया, इसका प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थ्योरेटिकल मैंने बता दिया हूँ कि क्या है और क्यों यूज होता है। अच्छा अब आते हैं लास्ट चीज पे हमारे, जो हम लोग कर रहे थे पब्लिक आईपी का, ठीक है। ये पब्लिक आईपी है मेरी, और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मुझे मूव करना है, तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि वीनेट क्यों नहीं है, रिसोर्स ग्रुप क्यों है, ठीक है। अब मैं रिसोर्स ग्रुप पे जाता हूँ, और रिसोर्स ग्रुप में जाने के बाद मैं बोलूंगा देखो मेरा रिसोर्स ग्रुप ये दिख रहा है एसआरसी, दूसरा रिसोर्स ग्रुप में ना डेस्टी मुझे दिख रहा नहीं है। चलो एक काम हम लोग करते हैं, एक न्यू रिसोर्स ग्रुप बना देते हैं, वी नेट हाइफन DEST डेस्टी, मतलब डेस्टिनेशन 01, इसको मैं बोलता हूँ ओके और करता हूँ नेक्स्ट। अब ये देखो ये क्या है, इसके पीछे ये भी एक अलग कहानी है भाई, ये वैलिडेशन करते रहेगा। अब ये वैलिडेशन होगा कि वैलिडेशन है, कुछ डिपेंडेंट सर्विस है या नहीं है, इसको मूव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये आपका वैलिडेशन होता है। जब इसमें सक्सेस आ जाएगा नेक्स्ट करो मूव, खत्म कहानी, इसकी दूसरी जगह पहुंच जाएगा वो, ठीक है। बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से एक और चीज मैं आपको बता दूं, मीनवाइल मैं इसको कर देता हूँ बंद। कल मैंने आप लोगों के लिए बहुत वो किया ना, तो मेरा काफी सारे उसके वो कट गए यार, जो क्रेडिट मिलते हैं ना, तो इसके लिए मुझे आज कॉशियस लेके फटाफट जैसे ही अपना काम हो रहा है ना उसको हटाना है। ठीक है, हमको पहले लोड बैलेंसर उड़ा देंगे हम लोग, अभी लोड बैलेंसर का अपना काम हो चुका है। किसी को कुछ डाउट? ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है वो। लोड बैलेंसर पे जाते हैं हम लोग, और लोड बैलेंसर पे जाके इसको डायरेक्ट मार देते हैं डिलीट, खत्म कहानी इसकी, ठीक है। मीनवाइल यहाँ पर देखते हैं क्या चालू है, इसका पेंडिंग वैलिडेशन चालू है। तो अभी भी टाइम लग जाता है यार इसमें, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग इसको, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि अननेसेसरी रुके रहे हम लोग, ठीक है। काफी इसमें ये होने दो इसको, जब से हमारा ये सब दूसरा काम हो रहा है। अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पे और जाऊंगा वर्चुअल मशीन पे, और मैं इसको मार दूंगा अभी ये वाले को डिलीट,
वर्चुअल मशीन जो 2 मैंने बनाया था वीएम को, डिलीट फोर्स, डिलीट कर दो भाई। अच्छा, स्क्रिप्ट भी है, मैं स्क्रिप्ट का ना मैं शुरू करने सोचता हूँ, तो उतने में आप लोग जब तक ये समझते हो फिर दूसरी एक टॉपिक आ जाती है, तो मैं ना ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना एक बार स्क्रिप्ट के थ्रू और CLI कमांड जो ये देख रहे हो ना इसके थ्रू करेंगे हम लोग। मैंने तो काफी बार किया हूँ, आप लोगों को बता दूंगा कैसे करते हैं, मजा आएगी उसमें, बहुत अलग अलग लगता है वो। अच्छा, तो ये भाई हो रहा है जब से, ये जब से हो रहा है तो हम लोग जाते हैं यहाँ। अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरा क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि भाई मुझे एक और वीएम सेम यही कॉन्फ़िगरेशन का बना कर दो। मैंने ये प्रैक्टिकल AWS में किया हूँ, ठीक है? यही डिस्क का बना कर दो सेम। क्या करूँगा मैं बोलूँगा अरे यार ये वाला कंटेंट करना है तो कैसे मूव करूँ वीएम, क्या करूँ? मेरी मैं देखो आपको क्या बोला, एक चीज़ रुको आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ बहुत मज़ेदार चीज़। हुँ, कहाँ गया ये यार? अभी जो कुछ बताना रहता है ना तभी तब ये सब हो जाता है। यहाँ पे आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है मूव का? कहीं नहीं ऑप्शन है मूव का, कहीं ऑप्शन ही नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ जाऊँ रिसोर्स ग्रुप में, तो रिसोर्स ग्रुप में मुझे ऑप्शन दिखेगा मूव का, देखो। हाँ, ये मूव का क्यों ऑप्शन फ्रीज़ आउट दिखा रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ इसको। अच्छा, कुछ क्योंकि रिसोर्स ही नहीं होगी शायद इसलिए। हाँ, मूव का ऑप्शन आया। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन रीजन, भाई यही ऑप्शन है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि मेरा एक मेरा एक मेरा एक ये है सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरे 2 वीनेट हैं, ठीक है? 2 अलग-अलग वीनेट हैं। ये मेरा ये मेरा फॉर एग्जांपल, इसको यार ये क्यों आ गया बीच में? यार ये, हाँ, ये भी गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझो, ठीक है? कि ऐसा था कि एक रिसोर्स थी हमारी नॉन प्रॉड में और ये थी हमारी प्रॉड में, ठीक है? इसकी कुछ रिसोर्सेस हमारी 4 वीएम, 5 वीएम, 10 वीएम, सब्सक्रिप्शन एक है। भाई लोग ये कहानी आप याद रखो, मैं अभी किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन एक है, वीनेट हमारे 2 हैं, एक नॉन प्रॉड है, एक प्रॉड है। ये वाले जो नॉन प्रॉड रिसोर्स जो वीएम थे ना, इसमें से 2 वीएम ऐसे हो गए जिन लोगों को हमको क्लाइंट ने बोला कि भाई ये मुझे ना प्रॉड में मूव करो, मुझे यही रिसोर्स प्रॉड में चाहिए। तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शन बचता है? 2 चीज़ें हैं आपके पास, आप कैसे, यानी ये आपको कुछ चीज़ जो है 1 मिनट से दूसरे मिनट में डालना है मेरे भाई। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखो, अगर आपको ये बोला रहता कि मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन है, लेट्स से सब्सक्रिप्शन का नाम हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये सब्सक्रिप्शन का नाम हो गया हमारा नॉर्थ यूरोप फॉर एग्जांपल, ठीक है? यहाँ से यहाँ मूव करना है वो तो मुझे दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन दूसरे सब्सक्रिप्शन में कर सकता हूँ, दूसरे लोकेशन में कर सकता हूँ। लेकिन मैं वीनेट टू वीनेट कैसे जाऊँ? समझ रहे हो आप? वीनेट टू वीनेट कैसे मैं मूव हूँ? मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कैसे मूव करूँगा? ठीक है? और ये पॉसिबल सिनेरियो है, ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्शनल है या ऐसा नॉन अननोन सिनेरियो ये है या इतना ऐसा नहीं चलता मार्केट में, नहीं, ये बहुत चलता है ये सिनेरियो। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? ठीक है, अच्छा ये देखो आ गया हमारा सक्सीडेड, इसी के लिए मैं इतना आप लोग को बता रहा था कि आप लोग को थोड़ा-सा टाइम पास हो जाए आप लोगों का, नहीं तो आप लोग थक जाते एकदम कि भाई कब तक रुके रहेंगे इसमें। ये मेरा हो गया इसका लोड बैलेंसर का काम, मैं भी इसको कर देता हूँ। डिलीट यस, ये क्या बोल रहा है फेल्ड एरर इस अपडेटेड करना, हाँ ठीक है, एक अपडेट चालू है तो इसके लिए दूसरा अपडेट नहीं करने दे रहा है वो। एक अपडेट हमारा ऑलरेडी चालू है ना, ठीक है? ओके, अब ये आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि मैं 1 वीनेट से, मेरा ये वीनेट है, ये वीनेट से मुझे दूसरे वीनेट में जाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा,
मैं ये चीज आप लोगों को नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि 1 मिनट से दूसरे मिनट में जाने के लिए अपने को क्या लगता है, कैसे हम लोग जाते हैं। ठीक है, आज मैं ये खाली पब्लिक आईपी का आपको दिखा दूं, हो जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है मूविंग। अब ये मूव हो रहा है, ठीक है। जब से मूव होता है, मैं दूसरा जो है हमारा उसको डिलीट मार देता हूँ। पता नहीं मैं कौन सा मूव कर रहा था, मुझे तो याद भी नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट। आज का यही था हमारा डिस्कशन, यही था जो एज़्योर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बेसिकली हमने वीनेट के बारे में आज डिस्कस किया, जो जैसा मैं इस स्लाइड में आपको दिखा रहा था। एनटीआर एप्लीकेशन क्या होता है, ऑप्शंस टू कनेक्ट वर्चुअल वीनेट, गेटवे के थ्रू वीनेट पेयरिंग, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े हैं। ये हमारी ये सब टॉपिक हो चुकी है, ये सब टॉपिक हो चुकी है हमारी। एनएसजी भी हो चुका है, एप्लीकेशन गेटवे भी हो चुका है, एआरएम मुझे करना था, और आपका आर्किटेक्ट हाइब्रिड क्लाउड आपका ये कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी आगे का रोड मैप मैं आप लोगों को बता दूं। हमारा ये तीसरा सेशन था। वी नेट पेयरिंग का हमने थियोरेटिकल देखा है, प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इसमें हम लोगों ने एक और टॉपिक ऐड कर दिए जिसका नाम है लोड बैलेंसर, जो मैं यहाँ कवर करने वाला था बेसिक नेटवर्क आर्किटेक्चर के उसमें। तो अभी हम लोग वी नेट पेयरिंग का प्रैक्टिकल और कुछ और कंपोनेंट्स यूज केस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हो सकता है कि आपका थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो, बिकॉज वो हमारा लास्ट सेशन रहेगा एज़्योर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट 4th है सैटरडे, 5th है संडे। ठीक है, ये कुछ टाइपो नहीं, मैं आप लोग को बता दूं। 5th को हम लोग बहुत ही छोटे टाइम के लिए कनेक्ट करेंगे। हमारा जो टारगेट अचीव हो जाएगा ऑन टाइम, हमने जो टॉपिक कवर की है उसको सेलिब्रेट करेंगे, और हमारे नए टारगेट के बारे में, एक नई रोड मैप के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, ओके, थैंक यू शहबाज भाई फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू नवेद, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। शहबाज भाई, जी सर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग फिर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा आपको सेशन? बहुत नवेद अच्छा, भाई, माशाल्लाह। नवेद भाई काफी आप नई तो वही, नई चीजें सामने आ रही हैं। अरे भाई बहुत नई नई चीजें आएगी सामने। हाँ, अभी आगे के सेशन में और भी कुछ सोचा हूँ, ये हमारा रोड मैप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आगे का। उसके बाद न्यू रोड मैप आएगा। हाँ हाँ, न्यू रोड मैप में हमारा कुछ आगे की टॉपिक पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, थोड़ा से इंटरेस्ट देखते हुए फिर वैसा करेंगे। अभी तो फिलहाल जो इंक्लाइन है हमारा वो है एज़्योर सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि एज़्योर सिक्योरिटी के कुछ मेंबर्स अभी हमारे उसमें ज्वाइन हुए हैं। एक जो एक्सेंचर की जो सुदीप की कलीग है स्वराली करके, जिन्होंने ऐड इन्होंने किया है, वो एक और मेंबर आने वाले हैं नेक्स्ट उससे। तो कुछ लोग सिक्योरिटी के हैं। अभी तो हमारा फिलहाल जो प्रेफरेंस चल रहा है एज़्योर सिक्योरिटी पे, लेकिन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और बेस्ड ऑन क्या टॉपिक हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, मेरी क्या अवेलेबिलिटी कमिटमेंट्स हैं, उस बेस पे मैंने एक नया रोड मैप बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द कॉल। कनेक्ट करते हैं फिर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू वेरी मच। खुदा थैंक हाफिज। यू। Thank you.